Hello everyone, welcome to EduTap. There was a time when students used to solely prepare for RBI Grade B exam because we know that it has been pretty much consistent. Every year the notification is released. But nowadays I would say the scenario has changed a bit because if we talk about other regulatory bodies also, for example NABARD, SEBI, SIDBI, PFRDA, NPS and IFSCA also. These regulatory bodies are also releasing notifications on a regular basis, and that is why one should consider these opportunities also. Why is it so? Because basically a lot of syllabus for these examinations also overlaps with RBI grade B, and these exams also are going to provide you, if you're able to clear this exam, you are going to get good handsome salary, social security, a good social status, all such sort of things. So why to miss this opportunity? And as a part of this video we are going to talk about IFSCA grade A, where we are going to see that what are those areas that are common between IFSCA grade A and RBI grade B, so that those students who are targeting RBI grade B, they can target IFSCA grade A also. Fine. And this is going to be very helpful for those students who are at the awareness stage, who are still exploring different examinations, and let me tell you that IFSCA grade A could be one of them. Now, before we discuss all these things, a small announcement. We know that previous year papers play a very important role. No matter what examination you are preparing for, they help you to understand the trend and pattern with respect to examinations. So, what you can do with respect to IFSCA grade A, in order to download the PYQs, you can go to the description box, click over the link, and from there you can download this free ebook that will help you to analyze the previous year papers. Now, moving forward, let us talk about the comparison of syllabus between RBI grade B and IFSCA grade A. But let us see the selection process. And let me tell you that the selection process is same. You have phase 1, phase 2 and the interview stage in both the examinations. If firstly we talk about phase 1, then first of all we know about RBI grade B syllabus, right? It has GA, reasoning, English and quants. Now the same syllabus is there with IFSCA grade A also, with an exception that it has this additional paper 2 also. We will talk about it later on. But if we talk about paper 1, fine. If we talk about paper 1, over here you can see here also we have GA, here also we have English, quants and reasoning. The only word of caution that I would like to add is that while preparing GA, प्लीज पुट मोर फोकस अपॉन द फाइनेंशियल सेक्टर, जो कि आप ऑफ कोर्स आरबीआई में फोकस करोगे ही, बट आईएफएससी में थोड़ा उसको अच्छे से करके जाना, बिकॉज क्वेश्चंस वहां से आते हैं और सिलेबस में भी वो डायरेक्टली मेंशन है. सो दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर. एंड लेट मी ऑल्सो टेल यू दैट द लेवल ऑफ प्रिपरेशन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर आईएफएससी ग्रेड इज लोअर एज कंपेयर टू आरबीआई ग्रेड बी, बिकॉज आरबीआई ग्रेड बी का डिफिकल्टी लेवल हाई है. तो अगर आपने यहाँ पर अपना 100% दिया है तो आई वुड से आईएफएससी में आपको बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा, नो डाउट रिगार्डिंग दैट. फाइन. अपार्ट फ्रॉम दैट लेट मी ऑल्सो टेल यू कि फेज 1 में ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा मार्क्स लेके आने हैं या बहुत हाई लेवल की प्रिपरेशन चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है. क्यों? बिकॉज फेज 1 में जो कट ऑफ है पेपर 1 के लिए वो सिर्फ 30% है. अगर आप ये कट ऑफ क्लियर कर लेते हो 30% का, आप ऑटोमेटिकली फेज 2 में चले जाओगे. सिमिलर रूल अप्लाइज टू फेज 2 ऑल्सो, कि यहाँ पर 40% है एंड एग्रीगेट कट ऑफ जो है वो 40% है, यानी कि फेज 1 और फेज 2 का मिला के. तो बस आपको ये कट ऑफ क्लियर करने हैं एंड यू विल बी एलिजिबल फॉर फेज 2. बट फेज 2 में आपको मैक्सिमम मार्क्स लाने होंगे, नो डाउट रिगार्डिंग दैट. द पॉइंट आई वांट टू मेक इज दैट you require less effort in order to crack IFSCA grade A phase 1 as compared to RBI grade B. This is something that I want you to know. इसके अलावा कुछ और कर सकते हो तो प्लीज सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. इससे आपको पता चलेगा कि यार डिफिकल्टी लेवल क्या है, इंपॉर्टेंट एरियाज क्या है इस पोर्शन को लेके. अपार्ट फ्रॉम दैट प्लीज गो फॉर मॉक टेस्ट पेपर्स ऑल्सो, ये भी बहुत हेल्पफुल रहेंगे एज अ पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन. आई होप इट इज क्लियर टू यू. नाउ मूविंग फॉरवर्ड लेट अस ब्रेक डाउन द सिलेबस. सो बेसिकली इफ यू टॉक अबाउट फेज 1 सिलेबस, यू कैन सी क्वांट्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश. यही चीजें आप आरबीआई के लिए भी पढ़ते हो और यही चीजें आपको आईएफएससी के लिए भी करनी है. ठीक है, तो कोई स्ट्रैटेजी में बड़ा चेंज नहीं है. बस ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि आईएफएससी में बस क्वालिफाइंग है एंड 30% कट ऑफ क्लियर करना है आपको पेपर 1 के लिए, जो कि आप आरबीआई की प्रिपरेशन में आपने 100% दिया तो आप कर ही लोगे. उसके बाद आते हैं जीए की तरफ. वही सेम जो जीए आप आरबीआई में पढ़ते हो वही यहाँ पर भी है. बस छोटा सा फर्क ये है कि फर्क भी नहीं है वो, बस एक छोटा सा क्वेश्चन है जो आपको ध्यान में रखना है कि फाइनेंस सेक्टर वाली जीए की न्यूज़ पे ज़्यादा फोकस करना है, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं आईएफएससी में, विच इज़ प्रीटी मच डूएबल. राइट. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट विच आई वुड से इज पेपर 2 एज अ पार्ट ऑफ आईएफएससी. अब अगर मैं पेपर 2 को ब्रेक डाउन करूँ सिलेबस को, तो इसमें क्या क्या है. ठीक है, अभी के लिए इसको बोल जाओ ये आरबीआई का है, यहाँ पे देखते हैं. If you talk about IFSCA, what do you have?
कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी। कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी ऐसा पोर्शन है जहां पर आपको थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने होंगे, ज्यादा तो नहीं, बिकॉज आप थोड़ी अकाउंटेंसी फाइनेंस में भी कवर करते हो, राइट, बेसिक्स ऑफ अकाउंटेंसी यहाँ पर भी कवर करते हो, बट यहाँ पर भी आपको थोड़ा देखना होगा, वही प्रिपरेशन आपको यहाँ काम आएगी, बट जो क्वेश्चन की डेप्थ है वो आपको एनालाइज करनी होगी पीवाईक्यूज के थ्रू। बट आई वुड से मोर देन 50% जो आपका काम है वो आरबीआई की प्रिपरेशन से भी हो जाएगा, यहाँ पे 50 भी नहीं, 60 to 70% आरबीआई की प्रिपरेशन से हो जाएगा, बस थोड़ी से कुछ एडिशनल टॉपिक से 2-3 वो आपको देखने होंगे, अदरवाइज द कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी इज डूएबल। नेक्स्ट आते हैं मैनेजमेंट पे, इसकी बात मैं बाद में करूंगा, ठीक है, बट पहले हम बात करूंगा इंडियन इकोनॉमी एंड ग्लोबल इकोनॉमी की। जस्ट लुक एट हियर, द फर्स्ट टॉपिक इज डिमांड एंड सप्लाई, ये भी आरबीआई का टॉपिक है, बेसिक टॉपिक है, मार्केट स्ट्रक्चर भी आप आरबीआई में करते हो, नेशनल इनकम भी इज समथिंग दैट यू प्रिपेयर एज अ पार्ट ऑफ आरबीआई, बैलेंस ऑफ पेमेंट अगेन इज समथिंग दैट बेसिकली यू प्रिपेयर एज अ पार्ट ऑफ योर आरबीआई सिलेबस, फाइन, इकोनॉमिक्स पे कवर करते हो बैलेंस ऑफ पेमेंट भी। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद है मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, अगेन मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी इट इज अ पार्ट ऑफ योर आरबीआई सिलेबस। देन आफ्टर दैट यू हैव फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है ये आपके फाइनेंस के सिलेबस का पार्ट है आरबीआई में, तो यहां पर अगर आप देखोगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आप आरबीआई में कवर करते ही हो, बट एज अ पार्ट ऑफ फाइनेंस, बट आईएफएससी में वो इकोनॉमिक्स में मेंशन्ड है। देन वी हैव रोल ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आल्सो, जो कि आपकी आरबीआई में है, विच इज ओवर हियर एज अ पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, विच इज आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ। सो यू कैन सी कि अगर आपने आरबीआई की तैयारी की तो इकोनॉमी ऑटोमेटिकली सॉल्व हो गई। इफ यू टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग इज बेसिकली फाइनेंस। अब फाइनेंस में यहाँ पे क्या दिया है, फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल मार्केट एंड कुछ जनरल टॉपिक्स है। आप इसको ब्रेक डाउन करें जो डिटेल सिलेबस नोटिफिकेशन में मेंशन्ड है, सो यू कैन सी इट ओवर हियर। जो आईएफएससी का सिलेबस है आरबीआई में वही चीजें हैं, मैं बोलूंगा कि आरबीआई का सिलेबस थोड़ा ज्यादा है एज कंपेयर टू आईएफएससी है, विद एन एक्सेप्शन ऑफ वन टॉपिक, एंड व्हाट इज दैट वन टॉपिक, दैट वन टॉपिक इज टैक्सेस। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स करना होगा, बहुत बड़ी डील नहीं है, ठीक है, तो जीएसटी समझना होगा, एफआरबीएम एक्ट पढ़ना होगा, ये बस एक छोटा सा जो ई पोर्शन है, दिस ई पोर्शन इज समथिंग दैट यू हैव टू कवर, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर ऑलरेडी देयर इन आरबीआई ग्रेड बी एंड दैट इज डूएबल फ्रॉम दैट ओनली, ठीक है। तो कोई एक्स्ट्रा पोर्शन, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है, सिवाय डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस को छोड़कर, बाकी आप ऑलरेडी से डील कर लोगे। और अगर नहीं भी किया डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि आपको फेज 1 के लिए चाहिए, और फेज 1 मैंने ऑलरेडी बोला आपको कि क्वालिफाइंग है, 40% मार्क्स लाने पेपर 2 में एंड द जॉब इज डन। तो मुझे नहीं लगता एक आधे टॉपिक से कोई फर्क पड़ता है, बट फिर भी सेफ साइड में होने के लिए पढ़ लेना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको पढ़ने में, ठीक है। तो और कोशिश करना कि इतना पढ़ लो कि इजी और मॉडरेट लेवल क्वेश्चन सॉल्व कर लो, डिफिकल्ट नहीं भी किए तो चलेगा। सो दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू कंसिडर। द नेक्स्ट इज मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट में तो आपको कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट आईएफएससी का आरबीआई के मुकाबले बहुत ही छोटा है। हियर द सिलेबस इज वेरी मच कंसाइज एंड शॉर्टर, द नंबर ऑफ टॉपिक्स आर लेसर एज कंपेयर टू आरबीआई, विद एन एक्सेप्शन ऑफ वन टॉपिक, एंड व्हाट इज दैट वन टॉपिक, वो है आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज नॉट कवर्ड एज अ पार्ट ऑफ आरबीआई, तो छोटा सा टॉपिक है दिस फोर्थ पोर्शन। सो बस यहाँ पर थोड़े एफर्ट डालने होंगे, बाकी आपकी जॉब हो गई, ठीक है, काम हो गया। ये सब जो टॉपिक है इनको तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आरबीआई में, अगर अच्छे से पढ़े हैं इजिली आप मैनेजमेंट के एमसीक्यूज हैंडल कर लोगे एज अ पार्ट ऑफ पेपर 2 और फेज 1। So that's all about, I would say, phase 1. Now let us talk about phase 2. अब phase 2 का सिलेबस अगर हम देखें, हमें पता है कि पेपर 1, 2 एंड 3 है, 3 पेपर्स होते हैं आरबीआई में, और अगर मैं आईएफएससी की बात करूं यहाँ पर 2 पेपर्स होते हैं। इफ यू टॉक अबाउट द इंग्लिश पेपर पूरा का पूरा सेम है, कोई मेहनत की जरूरत नहीं है, कोई एडिशनल एफर्ट नहीं चाहिए इंग्लिश के पेपर में, जो वहाँ है वो वही यहाँ पर होगा। ज़्यादा ज़्यादा पीवाईक्यूज देख लेना, ठीक है, उससे थोड़ा आइडिया मिल जाएगा डिफिकल्टी लेवल का, किस तरह के टॉपिक एसए में आते हैं या कॉम्प्रिहेंशन किस लेवल के पूछे जाते हैं, तो वो ज़्यादा ज़्यादा कर सकते हो, कोई ऐसे अलग से अप्रोच नहीं चाहिए। उसके बाद हम बात करें दूसरे पेपर की, जो है पेपर 2, राइट। पेपर 2 इज जनरल स्ट्रीम, यहां पर आपको एफर्ट चाहिए। ये एक पोर्शन ऐसा है जहां पर एफर्ट लगाने होंगे, 2-3 टॉपिक्स ऐसे हैं, 2-3 एरियाज ऐसे जो आपको पढ़ना पड़ेगा, एंड ऑफ कोर्स एक अलग एग्जाम है, एक अलग थीम से रिलेटेड एग्जाम है, तो कुछ तो एडिशनल टॉपिक्स होंगे, और मुझे नहीं लगता कि ये एफर्ट बहुत ज्यादा है किसी एक एग्जाम को क्लियर करने के लिए, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ विच आर दोस एरियाज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू हैव, फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिकली वी हैव, आई वुड से, द बैंकिंग टॉपिक। तो बैंकिंग टॉपिक में क्या है, एज अ पार्ट ऑफ बैंकिंग what do we have all this kind of area that you cover as a part of your finance syllabus of RBI grade B। तो यही बैंकिंग है, यहाँ पर जो बैंकिंग हम यहाँ कवर करते हो वही यहाँ चाहिए, और मैं बोलूंगा आईएफएससी में कम बैंकिंग चाहिए, ठीक है। तो आईएफएससी में ज्यादा एफर्ट नहीं चाहिए बैंकिंग से रिलेटेड, और जो अगर आपने आरबीआई प्रिपेयर किया है तो ऑटोमेटिकली आईएफएससी के लिए वो प्रिपेयर हो जाती है। उसके बाद कैपिटल मार्केट है, दीज थिंग्स आर गोइंग टू कवर इन आरबीआई ऑल्सो, विद एन एक्सेप्शन ऑफ दिस थिंग विच इज प्रीशियस मेटल। इसकी आप थोड़ी सी झलक देखते हो आरबीआई में, बट यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना प्रीशियस मेटल के रिलेटेड क्या चीजें होती हैं। इस टॉपिक को
डिटेल में पढ़ना है क्योंकि स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है सिलेबस में, राइट। उसके बाद कुछ छोटे टॉपिक्स हैं, कुछ छोटे टॉपिक्स हैं जहाँ एक्स्ट्रा एफर्ट चाहिए, जो कि है आपका, ठीक है, यहाँ पे तो मैंने आपको बता दिया प्रीशियस मेटल है। एक आपके पास आएगा पेंशन सेक्टर, जो कि बहुत बेसिक टॉपिक है, आपको स्टेटस ऑफ पेंशन सेक्टर देखना है इंडिया का, टाइप ऑफ रिटायरमेंट स्कीम देखनी है, एनपीएस एपीवाई एन्युटी प्लान ऑफ बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, हार्डली 7 डेज लगेंगे इसमें, उससे भी कम लग सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 7 डेज इट विल टेक टू कवर द पेंशन सेक्टर। 5 डेज में भी आराम से कवर हो सकता है अगर आप फुल डे अपना दे रहे हो तो। उसके बाद इंश्योरेंस का टॉपिक है, ठीक है, ये इंश्योरेंस का टॉपिक है, और मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ही ज़्यादा आई वुड से डिटेल्ड सिलेबस है विद रिस्पेक्ट टू इंश्योरेंस, एंड और डिस्क्रिप्टिव पेपर भी नहीं है ये। अगर हम आईआरडीए जैसे एग्जाम की बात करें, वहां पे इंश्योरेंस डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, तो आपको उसी हिसाब से पढ़ना है और इसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जितना सिलेबस दिया है वो डिटेल में करना होगा, क्यों? क्योंकि जो फेज 2 है, फेज 2 इज नॉट क्वालिफाइंग, फेज 2 के जो मार्क्स है वो आपके इंटरव्यू स्टेज के साथ मिलकर फाइनल मेरिट लिस्ट डिसाइड करने में रोल प्ले करेंगे, ठीक है। इस कट ऑफ के ऊपर मत जाना फेज 2 में, ये तो बस ऐसे मिनिमम लिखा है उन्होंने, ठीक है। ये दिस इज नॉट आई वुड से समथिंग दैट यू हैव टू रिलाई अपॉन। आपको मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर लेकर आने हैं, और तक क्योंकि फेज 2 आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल करेगा मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करने में। सो दैट इज द आइडिया, दीज आर द एक्स्ट्रा एरियाज दैट यू हैव टू प्रिपेयर, कैपिटल मार्केट, पेंशन सेक्टर एंड इंश्योरेंस। बाकी की जितनी भी चीजें हैं ये सब आप कवर करोगे। उसके बाद एक लास्ट पोर्शन है, लास्ट पोर्शन है फेज 2 में, जहां पर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने हैं, वो है आईएफएससी एक्ट। यहां पर क्या टॉपिक है, पहले आपको आईएफएससी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए जिसका आप एग्जाम देने जा रहे हो। आईएफएससी एक्ट के बारे में पता होना चाहिए। अभी एक्ट कहां से मिलेगा? आईएफएससी की वेबसाइट से मिलेगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। आफ्टर दैट वी हैव गिफ्ट आईएफएससी, ठीक है, गिफ्ट सिटी के बारे में पढ़ना है। देन यू हैव ग्लोबल फाइनेंशियल सेक्टर, जो इंटरनेशनल लेवल पे ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर है, थोड़ा उनके बारे में पढ़ना होगा। दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू डू। और अब इन चीजों को कैसे कवर करना है, इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है कंप्लीट सिलेबस वाली। Fine, you can go and you can watch this video, and here you will get an idea that what are the sources that you can refer in order to prepare these different components. Fine, so यहाँ पर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि यार कवर क्या करना है। बट या इस वीडियो में आपको ये पता चल गया कि आरबीआई के मुकाबले क्या वो टॉपिक्स है जो आपको एडिशनल पढ़ने होंगे। तो अगर मैं फेज 1 की बात करूं, फेज 1 में कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी ऑलमोस्ट हो जाएगा, मैनेजमेंट हो जाएगा, इंडियन इकोनॉमी हो जाएगा, फाइनेंस हो जाएगा, ये सारा का सारा आपका आरबीआई से कवर हो जाएगा, ठीक है। बस अकाउंटेंसी एंड कॉमर्स में थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है, एंड कॉस्टिंग में थोड़ा एफर्ट डालेंगे, बिकॉज कॉस्टिंग यहाँ पर नहीं है। कॉस्टिंग सभी के सिलेबस में है और पीएफआरडी के सिलेबस में है, तो वहां वाले स्टूडेंट इसको कवर कर लेंगे। बट आरबीआई वाले ऑफ कोर्स बिकॉज इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ आरबीआई ग्रेड भी, तो वो यहाँ पर आपने कवर नहीं किया होगा। सो ये थोड़ा छोटा सा पोर्शन है, बट अगेन फेज 1 का पार्ट है, डिटेल में बिल्कुल नहीं जाना है, ज्यादा डिटेल में मत जाना। बस ये देख लेना कि इजी और मॉडरेट टाइप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। क्यों? बिकॉज ये आपका फेज 2 में बिल्कुल यूज नहीं होने वाला है, ये सिर्फ फेज 1 में ही रिक्वायर्ड है। और फेज 1 मैंने आपको बता दिया है, फेज 1 में आपको सिर्फ इस पेपर में 40% कट ऑफ क्लियर करना है। सो इफ आई ट्राई टू समराइज थिंग्स, सो समरी क्या है? समरी ये है दैट यू हैव टू फोकस अपॉन दीज एरियाज बेसिकली। फर्स्टली यू हैव टू सी कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी थोड़ा देखना है। अपार्ट फ्रॉम दैट करंट अफेयर्स में फाइनेंस सेक्टर पे फोकस करना है। थर्डली यू हैव टू सी कॉस्टिंग, ठीक है, ये होगी आपकी फेज 1 की बात। फेज 2 की बात करें, ये आपको ज्यादा डिटेल में नहीं करना है, प्लीज याद रखना, क्योंकि मैंने बताया क्वालिफाइंग है, बट फेज 2 की चीजें डिटेल में करनी है। पेंशन सेक्टर डिटेल में पढ़ना है, बिकॉज मैक्सिमम मार्क्स आपको लेके आने हैं, आपको सिर्फ वो कट ऑफ वो क्वालिफाई नहीं करना है। उसके बाद सेकंड, इंश्योरेंस सेक्टर डिटेल में पढ़ना है। हार्डली मैं बोलूंगा 15 दिन लगेंगे आपको इंश्योरेंस कवर करने में, हार्डली 15 दिन। अगर आप कोई वीडियो देख रहे हो, कोई कोर्स देख रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो शायद 5 दिन एक्स्ट्रा लगा लो, ठीक है, 20 दिन लग सकते हैं, क्योंकि थोड़े रिसोर्सेज स्कैटर्ड होते हैं इंटरनेट पे, और कोई रिलायबल बुक नहीं है, एक अलग अलग सोर्सेज में जाना पड़ेगा, इससे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है, बट डूएबल, राइट। और उसके अलावा आपको क्या करना है? उसके अलावा आपको मॉक टेस्ट पेपर देखने हैं एंड पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, राइट। एंड द थर्ड थिंग आई फॉरगॉट टू से, विच इज आईएफएससी एक्ट, गिफ्ट सिटी, इन चीजों के बारे में पढ़ना है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एज अ पार्ट ऑफ ए सिलेबस। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में मैंने बताया है दैट बेसिकली हाउ व्हाट टाइप ऑफ सोर्सेज you have to refer in order to deal with these things. So I hope it is clear to you now. If this is clear, now moving on to the next part, that basically how EduTap can help you as a part of your preparation. So basically what you can do, you can go to a website edutap.in, और यहाँ पर आप कोर्सेज सेक्शन में जाके IFSC ग्रेड ए कोर्सेज में जा सकते हैं। एंड इस समय फ्रीडम सेल भी चल रही है, राइट, एंड एज अ पार्ट ऑफ दिस फ्रीडम सेल वी आर ऑल्सो ऑफरिंग 72% ऑफ। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू यूज दिस कोड India72 कोड आपको यूज करना है, एंड यू कैन अवेल द डिस्काउंट। एंड वी प्रोवाइड 2 टाइप्स ऑफ कोर्सेज, द फर्स्ट इज गोल्ड कोर्स एंड द सेकंड इज सिल्वर। गोल्ड कोर्स में आपको फेज 1 एंड फेज 2 से रिलेटेड कंटेंट मिलेगा, एंड सिल्वर कोर्स में सोनली फॉर द फेज 2 ओनली। देन
लेट अस से यू वांट टू सी द डेमो कोर्स कि यार ये कोर्स मेरी प्रिपरेशन के साथ अलाइन कर रहा है नहीं, मुझे सूट कर रहा है नहीं, तो उसके लिए आप ये स्टार्टर पैक भी देख सकते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट पैक है। यहाँ पर आपको दिख जाएगा क्लासेस कैसी है, नोट्स कैसे हैं, कुछ आप डेमो कंटेंट एक्सेस कर सकते हो और उसके बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव कॉम्बो कोर्सेज ऑल्सो, राइट। सो ये कॉम्बो कोर्सेज यानी कि IFSC और PFRD का सिलेबस बहुत ज़्यादा मिलता है, तो आपको एक साथ दोनों के लिए प्रिपेयर करना है, तो आप इस पर रिलाई कर सकते हो एंड यू कैन गो थ्रू इट एंड यू कैन सी द डिटेल्स एंड बेस्ड ऑन योर ओन कन्वीनियंस you can purchase it. So that is it from my end. If you have any other extra question or query, you can write it as a part of the comment box. So thank you so much and